सुबह से यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ नीचे से गए तो चलो डिवाइड करता लो। أنا ما كنت يمكن هنا نفتشه. زين الدارة. نغزل ملك يا أخي. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
حي على پاک شہر مکہ کی پاک گلیوں میں ہے، جس کا دیکھنے والا، تنکا چومنے والا، پتھر زیارت کے قابل ہے۔ یہ وہ پاک شہر جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یہ وہ پاک شہر ہے جہاں کعبہ معظمہ ہے، اور یہ وہ پاک شہر ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کہیں پر پیارے آقا کا بچپن گزرا، کہیں جوانی کے ایام گزرے۔ ان گلیوں میں پیارے آقا کی خوشبو ہے۔ صحابہ فرماتے ہم گلیوں سے گزرتے، جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی ہمیں پتہ چل جاتا ہمارے آقا یہاں سے گزرے۔ آج ہم ان گلیوں میں ہیں، شاید ہمارے پاس وہ دل نہیں، شاید ہمارے پاس وہ ناک نہیں جو ان کی خوشبو کو محسوس کر سکے۔ میری آواز سمجھ رہے ہیں؟ تو کوشش کیجئے گا اس طرح زیارتیں کریں ساری زندگی دل میں رہ جائیں، کیونکہ جس کی قدر کی جاتی ہے نا، اللہ وہ پھر عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ہم قدر کے ساتھ ادب والا سفر کریں گے، انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ پتہ کس روڈ پہ رہتے ہیں؟ یہ بھی خوش قسمتی کہ یہ وہ روڈ ہے جس پر چل کر پیارے آقا ہجرت کے لیے تشریف لے کے گئے تھے۔ اس گلی میں بھی آقا کی خوشبوئیں ہیں۔ اللہ ہمیں وہ ناک عطا فرما دے جو خوشبو کو محسوس کر سکے۔ یہاں اپنی مرضی سے نہیں پہنچا جاتا، اللہ کے کرم سے پہنچا جاتا ہے، اس کی عطا سے پہنچا جاتا ہے، اس کے فضل سے پہنچا جاتا ہے، اس کے انعام سے پہنچا جاتا ہے۔ کروڑوں دل ترستے ہیں آنے کو، لاکھوں لوگ اپلائی کرتے ہیں، ان میں سے بھی کئیوں کو جہاز سے اتار لیا جاتا ہے۔ آج آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا نظر آنے والا پہاڑ مطلب جبل سور۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا تعلق ہے ہجرت مدینہ سے۔ جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، کافروں کو بڑا مسئلہ ہوا کہ اسلام کو کیسے روکا جائے۔ انہوں نے 70 قبیلوں کو اکٹھا کیا، 70 سرداروں کو لیا، ان میں ابو جہل تھے۔ ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں، جہاں سے اسلام پھیل رہا ہے نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیتے۔ اس کے منہ میں خاک، اس نے ایسا سوچا، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت فرمانے والا۔ ادھر اللہ کا حکم آ گیا، پیارے آقا اپنے مبارک بستر سے اٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک بستر پر جگہ عطا فرمائی۔ قربان جائیں کیسا پیارا بستر ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایسا سکون سے کبھی نہیں سویا جیسا اس رات سویا۔
लोगों ने पूछा काफिर सर पे हों, तलवारें लेके खड़े हों, नींद कैसे आएगी? तो आप फरमाते जब मैं आम जिंदगी में सोने लगता था मुझे लगता था शायद जिंदगी की आखिरी रात हो, नींद नहीं आती थी। लेकिन जब मेरे आका ने फरमाया सुबह काफिरों की अमानतों को वापस करना है और मदीने पहुंचना है, मुझे यकीन हो गया, मेरे नबी ने फरमा दिया अब मैं मदीने पहुंच जाऊंगा। फरमाते मैं ऐसा सुकून से सोया जैसा जिंदगी में नहीं सोया। सूरह यासीन की तिलावत फरमा रहे प्यारे आका, अपने प्यारे प्यारे कदम अपने मुबारक घर से बाहर निकाले, जमीन से खाक उठाई, काफिरों के सरों पे डाली, सामने से गुजर गए, नजर ही नहीं आए। कभी जान देखिए, मुझसे बातें कीजिए बेटा समझ के, भाई समझ के, ताकि ये याद रहे। कभी जान देखिए जो जिस्म के अंदर होती है, देखिए किसी, वो तो जाने कायनात है ना। हमारे दिलों की जान है, जान कभी नजर आई है? सामने से गुजर गए और उस तरफ चले, आज हम जिस तरफ जा रहे हैं। अहमियत समझ रहे? प्यारे सिद्दीक अकबर को साथ लेना था। प्यारे सिद्दीक अकबर हमेशा तैयार रहते प्यारे आका के साथ चलने को। आपने अपना घर छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, सारा कुछ तो मक्के में था ना, सारा कुछ छोड़ के उस तरफ चले, आज हम जिस तरफ जा रहे हैं। अहमियत समझनी है कि आज कहाँ जा रहे हैं। तो जब प्यारे आका के साथ चले ना, तो कभी आगे चलते सिद्दीक अकबर, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। प्यारे आका ने फरमाया कोई परेशानी, आगे चलते हो, पीछे चलते हो, दाएं चलते हो, बाएं चलते हो? अर्ज करते हैं हुजूर जब मुझे लगता है काफिर सामने से हमला करेंगे मैं आपके सामने आ जाता हूँ। जब मुझे लगता है काफिर पीछे से हमला करेंगे मैं हुजूर आपके पीछे आ जाता हूँ। जब मुझे लगता है काफिर इधर से दाएं बाएं से हमला करेंगे मैं आपके दाएं बाएं आ जाता हूँ। मेरा दिल करता है अगर काफिर आए तो पहले अबू बकर तक पहुंचे, आप तक ना पहुंचे। जैसे फरमा रहे हो करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। जैसे फरमा रहे हुजूर ये एक जान क्या है, हर तरफ से अपनी जान आप पर कुर्बान कर दूं। अल्लाह सिद्दीक अकबर की मोहब्बत की मीम अता फरमा दे, उनके इश्क का आईन अता फरमा दे, उनकी मोहब्बत के जाम में से कोई कतरा अता फरमा दे। उनके इश्क के समुंदर में से हमें भी कोई हिस्सा अता फरमा दे, हमें भी अपने महबूब की मोहब्बत से नवाज दे। जब उस पहाड़ के पास पहुंचे प्यारे सिद्दीक अकबर प्यारे आका के साथ, तो अर्ज करते हैं हुजूर आप मेरे कंधों पे आ जाएं, मैं आपको इस पहाड़ के ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ आम इंसान को 2 घंटे लगते हैं ऊपर जाने में, 2 घंटे लगते हैं नीचे आने में। सांस के लिए वक्त चाहिए, 6 से 7 घंटे लगते हैं ऊपर जाने नीचे आने में। और प्यारे आका से अर्ज करते हैं हुजूर आप मेरे कंधों पे आ जाएं, मैं आपको इस पहाड़ के ऊपर लेके चलता हूँ। प्यारे आका ने फिर नवाजा, अपना मुबारक जिस्म, अपना कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार, फूलों से ज्यादा नरम जिस्म सिद्दीक अकबर के कंधों पे रख दिया। वो कैसे थकेंगे जिन पर आका हूं। आप उस पहाड़ पे पंजों के बल चढ़े, पंजे समझते हैं ना, एड़ी नहीं लगने दी, पंजों के बल उस पहाड़ पे चढ़े। उसकी भी वजह थी, काफी ढूंढने वाले थे, रिसर्चर्स थे, खोजी थे, पैरों के निशानों से ढूंढते थे कौन कहां से गुजरा। तो पंजों के बल ऊपर जाने का मकसद यह था अगर काफिर आए तो उनको लगे यहाँ से कोई सवारी गुजरी है, इंसान नहीं गुजरे। हिकमत थी, हिकमत के तहत आप ऊपर पहुंचे। तो प्यारे आका से अर्ज करते जब ऊपर पहुंचे तो अर्ज करते हुजूर आप आराम कीजिए, मैं गार को देखता हूँ। अब याद रखिए ये वो गार है जहाँ सांप था, जहाँ मकड़ी ने जाला बुना, जहाँ कबूतरी ने अंडे दिए। सुना था ना वाकया? अब समझ आइए कहाँ देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं। अच्छा यहाँ समझिए, ऐसे समझिए, एक बंदा हो, आपको पता चले इसने प्यारे आका को देखा है, मिलने को दिल करेगा, पूछने को दिल करेगा ना आका कैसे लगते हैं। अगर किसी बहन को प्यारे आका का दीदार हो तो मिलने को बहनों का दिल करेगा ना, पूछें कि कैसे लगते हैं। तो आज उस पहाड़ को देखेंगे जिसको आका ने देखा है, आज उससे देखना है जिस पर प्यारे आका ने कदम रखे हैं। अपने मुबारक खुशबुओं से नवाजा, अपने मुबारक जिस्म से नवाजा, अपनी मुबारक सांसों से नवाजा। जहाँ अल्लाह का एक न एक बंदा आया हो ना, रहमत बरसती है। तो जहाँ खुद प्यारे आका आए हो, रहमतों की कैसी बारिश होगी ना, नहाना उसमें इंशाअल्लाह। तो कह दो इंशाअल्लाह, वहां से बरकतें लेके आगे का सफर करना है इंशाअल्लाह। उसकी बुलंदी में जाके बताऊंगा कितनी है। मैंने अर्ज किया 2 घंटे लगते हैं सिर्फ जाने जाने में, आने जाने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, जो आते हैं उनको पता है, लेकिन उसकी बुलंदी में उतर के बताऊंगा। अच्छा जब आप ऊपर थे ना,
تو پیارے آقا سے اندر داخل ہونے کے لیے جب عرض کی آپ نے اجازت عطا فرمائی، اندر داخل ہوئے، اندر سوراخ تھے، اپنی مبارک چادر کے صدیق اکبر نے ٹکڑے کیے، سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ بچے، 2 روایتیں آتی ہیں، ایک میں آتا آپ نے اپنی ایڑی رکھی، دوسری روایت میں تھا آپ نے اپنا انگوٹھا مبارک رکھا پاؤں کے، جو بھی رکھے اپنے مبارک قدم ان 2 سوراخوں پہ رکھ دیے، پیارے آقا سے عرض کرتے حضور آ جائیں۔ پیارے آقا اندر داخل ہوئے، گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے، کیسی قسمت ہے، آقا گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں، صدیق اکبر چہرے مبارک کو دیکھی جا رہے ہیں، وہ عبادت جو دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا، صدیق اکبر کر رہے تھے کہ نبی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، تو پیارے آقا کے چہرے کو دیکھی جا رہے، نیچے سانپ تھا، اس نے پیارے صدیق اکبر کے قدموں کو ڈسا، لیکن محبت کی زبان اور ہوتی ہے، محبت کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے 3 دفعہ پیارے صدیق اکبر کے قدموں کو چوما، کیوں؟ یہ وہ قدم ہے جن پر چل کر پیارے آقا کو لے کے آئے، جب اس نے چوما پیارے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، چہرہ مبارک گود میں تھا نا، تو چہرہ مبارک پر پڑے، آنکھیں کھولی، پوچھا کوئی پریشانی ہے؟ عرض کرتے حضور ایسے لگتا ہے کسی چیز نے کاٹا ہے، پاؤں نہیں ہٹائے، فرمایا حضور ایسے لگتا ہے جیسے کسی چیز نے کاٹا ہے، پیارے آقا نے پاؤں ہٹانے کا کہا، نیچے سے سانپ نکلا، اس کو نوازا، جیسا نوازا چلا گیا، کون بتائے گا پیارے صدیق اکبر کے قدموں پہ کیا لگایا؟ اپنا مبارک لعاب، اپنا تھوک مبارک اگر کسی کھارے کنویں میں ڈال دے بیر شفا بن جاتا ہے، بیر شفا بن جاتا ہے، ایسا پانی جو پینے کے قابل نہیں تھا، پیارے آقا نے اپنا مبارک لعاب اس میں ڈالا، آج لوگ ترستے ہیں اس کی کچھ بوندیں مل جائیں، بیر شفا پینا ہے نا انشاءاللہ، وہ بدر کے قریب ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے اپنا مبارک لعاب اس میں لگایا نا پاؤں پہ، تو زہر کا اثر ختم ہو گیا، انشاءاللہ وہاں رکنے کے لیے یہاں انشاءاللہ گاڑی پارک ہوگی، آپ ساتھ رہیے، ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، جتنا وقت ملے اتنے میں رہیے، لیکن انشاءاللہ ساری زیارتیں کرنی ہیں، دلوں کو ٹھنڈا کرنا نا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کرتے ہیں، یہاں دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ 2 سوال آپ نے مجھ سے کرنے ہیں واپسی پہ، یہاں کھانا کون لے کے آتا تھا اور کبوتری کو کیا انعام ملا؟ آپ بیٹھے ایک دفعہ، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ نہیں تو لفا لے کے آتے ہیں تو آپ کو دوبارہ پیچھے والی جگہ سے، یہ وہ جگہ جہاں پیارے آقا نے جب اندر قیام فرمایا نا، تو سامنے جب ایسا، اس کے بعد جب پیارے آقا نے اپنا مبارک لعاب اس پہ لگایا تو پاؤں سے زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ اس کے بعد 3 روایتیں آتی ہیں، 2 راتیں 3 دن، 3 راتیں 3 دن، 3 راتیں 4 دن وہاں قیام فرمایا، بولا جاتا ہے 3 راتیں 3 دن، 3 روایتیں میں نے عرض کی، 2 راتیں 3 دن، 3 راتیں 3 دن، 3 راتیں 4 دن، مشہور روایت ہے 3 راتیں 3 دن۔ تو پیارے آقا نے وہاں 3 راتیں 3 دن قیام فرمایا۔ اب یہاں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے چیز ہے، چلیں یہاں میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو جب آپ اوپر تھے نا تو کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر اس پہاڑ پہ پہنچے، جب وہ اوپر پہنچے نا تو پیارے صدیق اکبر نے قدموں کی آواز سنی، تو پیارے آقا سے عرض کرتے حضور کافر آگے، اگر کچھ آگے بڑھیں گے ہمارے قدموں کو دیکھ لیں گے۔ جو اوپر گئے ان کو پتا ہے کہ جو باعث کھڑا ہو نا اندر، جو غار کے اندر ہوگا اس کے پاؤں نظر آتے ہیں ایسے۔ تو جب پیارے صدیق اکبر نے کہا حضور کچھ آگے بڑھیں گے ہمارے قدموں کو دیکھ لیں گے، تو پیارے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا ہے، وہی مدد فرمائے گا۔ تو اللہ کے حکم سے مکڑی آئی جس نے جالا بنا، ایسا جالا جو دیکھنے میں مشکل پیدا کرتا ہے۔ 1 رات کا جالا باریک ہوتا ہے، 10 رات کا جالا باریک ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے دیکھنے میں مشکل پیدا کرتا ہے۔ ایسا جالا بنا جو دیکھنے میں مشکل پیدا کرے، اور 10 رات کے جالے میں ایسے ہے کہ باریک ہوتا ہے تو دیکھنے میں آسانی رہتی ہے، تو ایسا جالا لگایا کہ دیکھنے میں مشکل ہو۔
काफिर आए, उन्होंने देखा जाला लगा है, अंडे पड़े हैं। अगर कोई गुजरा होता या जाला टूटा होता या अंडे टूटे होते या अंडे एक तरफ होते, ना जाला टूटा है ना अंडे टूटे हैं, इसका मतलब है यहाँ से कोई नहीं गुजरा, ये सोचकर वो वहां से वापस चले गए। इस तरह अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। अच्छा, 2 सवाल आपने मुझसे करने थे, चले अभी अर्ज करते तब तक हम पहुंच जाए। पहला, यहाँ खाना कौन लेके आता था, किसको पता है? परेशान नहीं हो ना, मेरे पूछने का मकसद ये नहीं मैं टीचर हूँ, इसलिए पूछ रहा कि आपकी तवज्जो रहेगी तो सारी जिंदगी याद रहेगी इंशाअल्लाह ना। तो यहाँ खाना लेके आता था हमारी प्यारे सिद्दीक़ अकबर की छोटी शहजादी हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे आका के लिए और अपने अब्बा जान के लिए खाना लेके आती थी। पता क्या सिखाया? हरम से चलना, काफिर रास्ते में तलवारें लेके खड़े हैं, रात का सफर है, खौफ वाला सफर है, उनके दरमियान से गुजरना, पहाड़ चढ़ना, अपने अब्बा जान के लिए और प्यारे आका के लिए खाना लेके आना। पता क्या सिखाया? बाप राजी तो रब राजी। पता क्या सिखाया? माँ बाप की खिदमत, चाहे हरम से चलना पड़े, चाहे पहाड़ चढ़ना पड़े, चाहे काफिरों के दरमियान से गुजरना पड़े, फिर भी माँ बाप को राजी करना है। इंशाअल्लाह नहीं कहते? तो दोबारा आना चाहते हैं? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ना, दोबारा आना है ना, तो जाके माँ बाप को राजी करें। ऐसी दुआएं देंगे आप फिर आ जाएंगे। जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए मगफिरत की दुआ, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके सदके फिर आना नसीब फरमाए। दूसरा सवाल आपने मुझसे करना था कि कबूतरी को क्या इनाम मिला, क्या करना था? कबूतरी को क्या इनाम? अच्छा, आप में से किन्होंने कबूतरों को दाने डाले? हाथ करे, इशारा करे, कोई बात डाले, कोई पूछे क्यों डाले? मक्के के हैं। अच्छा, आपके लेफ्ट पे देखिए, एक दफा लेफ्ट पे देखिए, शायद ये दरवाजा, ये पर्दे पीछे कर ले। ये जो बड़ा पहाड़ है ना आपके उल्टे चले यहाँ से देख लें, ये आपके लेफ्ट पे, ये देखिए, चले ये आपके उल्टे हाथ देखिए, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, जिसके ऊपर एक बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, वो देखिए, ये बड़े पत्थर के साथ ही वो गार है जिसको कहते हैं गारे सोर, जहाँ मकड़ी ने जाला बुना, जहाँ कबूतरी ने अंडे दिए। ये भाई को उठा दे, इनको उठा दे, इशारा कर दे भाई, ऊपर वाला बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, बाद में देखा नहीं, देख ले जबले सोर बीच का। चले ये देख ले, दाईं तरफ बाईं तरफ देखें, ये मैंने अर्ज किया, कोई आना चाहे अगर आपके होटल से 15-20 रियाल बाहर निकलेंगे ना, 15-20 रियाल में आपको यहाँ छोड़ देगा। ऊपर जाना चाहे चढ़े, जब तक आप रहना चाहे 6-7 घंटे, वापसी में फिर 15-20 रियाल लेके वापस। अगर गाड़ी करवाएंगे तो 200 रियाल ले लेगी, 150 रियाल ले लेगी, उसका फायदा नहीं होगा आपको। 4-5 लोग आना चाहिए, 7 लोग आना चाहिए, 7 सीटर मिल जाती है, आपको पता है। उस पे आए 15-20 रियाल 25 रियाल में छोड़ देंगे, उसके बाद जाने दे। आप दोबारा जब जाना चाहें वापस, दोबारा गाड़ी ले वापस चले इंशाअल्लाह, कहते हैं एक दो ज़ियारत कर लें। यही वो पहाड़ है जहाँ मकड़ी ने जाला बुना, जहाँ कबूतरी ने अंडे दिए। याद रहेगा ना इंशाअल्लाह? याद रहेगा। एक दफा कह दें इंशाअल्लाह। असल में आपके सामने मेन रोड की वजह से थोड़ा सा मसला है, कोई परेशानी तो बता दें, उतरना चाहे तो, और बस बार ड्राइवर कह रहे हैं। अल्लाह आप सब पर रहमत की नजर फरमाए। इंशाअल्लाह आगे हम दोनों तीनों जगह पे उतरेंगे, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। फील का फर्क पड़ गया, एक दफा कर ली ना, इतना फर्क पड़ जाता है। चले अल्लाह खैर फरमाए। देखते हैं आगे हम जा रहे हैं रफात की तरफ, तो मैं इंशाअल्लाह करता हूँ। ऊपर लिखा भी होगा जामिया उम्मुल कुरा, देखिएगा आगे लिखा होगा जामिया उम्मुल कुरा। जामिया मतलब मदरसा भी कहते हैं या यूनिवर्सिटी भी। अच्छा, अब थोड़ी सी दोबारा तवज्जो। अरफात क्या लेंगे? पीला, पीले रंग का येलो कलर का बोर्ड आपको नजर आएगा जिसपे लिखा होगा बिदाया अरफात।
1 मिनट से भी कम वक्त में हम उसके करीब पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सामने देखेंगे तो शायद नजर आ जाए, वो देखिए, देख रहे हैं? तो अरे इधर माजी ये राइट साइड ठीक है। तो क्या लिखा होगा आप खुद पढ़ के बताइएगा क्या है। क्या है कहते ये अरफात स्टार्ट हियर। अच्छा आप देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ बातें आपको बतानी है। यहाँ से देखिए आपको एक जंगला नजर आएगा, दाईं तरफ ही देखना है। जब टर्न लेंगे ना आपकी दाईं तरफ जंगला आ जाएगा। जंगला मतलब वो स्टील का केज समझ लें, ये देखिएगा ये लगा हुआ है। जी अच्छा ये क्यों लगा है? ये लगा। ये मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर दाखिल होना क्या है, फर्ज। ये बाउंड्री लगाने का मकसद क्या है क्या? कि कोई हाजी जो हज के लिए आया हो अंदर दाखिल होने से रह ना जाए। अच्छा बात समझ रहे हैं? जी बाहर खड़ा रहेगा हाजी नहीं, अंदर कदम रखा हाजी हो गया। हाँ जी। अब बात समझे? तो ये जगह जगह आपको बोर्ड भी लगे मिलेंगे येलो कलर के, जिसपे लिखा होगा बिदाया अराफात या निहाया अराफात। निहाया का मतलब होता है खत्म, बिदाया का मतलब होता है इब्तिदा, शुरू। विदाया अरफात ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना दूर हो गए, बोर्ड देखिए अब कितना दूर है। बहुत दूर। अब इसका मतलब क्या है? अब अराफात यहाँ नहीं रहा, उसके अंदर है। उसका जी। अंदर वो सीधा चलता यहाँ रुक गया, अराफात नहीं रहा। अब नहीं अराफात रहा। उसी के अंदर है। उसी के अंदर है। तो बाउंड्री मतलब हद, हद मतलब जहाँ से शुरू होता है या जहाँ पे खत्म होता है। तो ये लगाने का मकसद यही है कि आप लोगों के लिए आसानी रहे, कोई अंदर जाने से रह ना जाए। अल्लाह हमें भी जाना नसीब फरमाए। आमीन। अभी तो जा रहे हैं, हज पे भी आना नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। आपके लेफ्ट पे इंशाल्लाह मीनार नजर आएंगे आपको। लेफ्ट पे देखिए उल्टे हाथ, मस्जिद नमीरा के मीनार 4 मीनार नहीं 6 हैं। 6 कहाँ है? अच्छा दोबारा गिनिए। क्या है मल साहब, 4 दिख रहे हैं ना? पाँच तो है। नहीं वो एक साइड पे, एक, एक दो, साइड पे एक सीध में नजर आएगी आपको। 4, 5। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इसके 6 मीनार, 3 गुंबद, 60 दरवाजे, 60। असल में ना आदत पड़ गई है, तो जब आप कहते हैं समझ आ जाती, समझ आ गई। तो इंशाल्लाह या कौन सी मस्जिद है? कौन सी? मीनार वगैरह? मीनार। 6 मीनार, 3 गुंबद, 60 दरवाजे, 10 गेट। 6 मीनार, 3 गुंबद, 60 दरवाजे, 10 गेट, 10 गेट, 3,50,000 मुसल्ले। 1,50,000 जने नमाज पढ़ सकते हैं। 358 साइड एक्सक्यूज मी, तो यही वजह से देख के पीछे देखे आ जाए, आ गया।
हज के वक्त तो बहुत चढ़े हुए रहते ना जिधर। बिदाया अराफात, वहाँ से अंदर अराफात है। अब अराफात के अंदर जबले रहमत के पास है, ये है सामने आपके जबले रहमत। अब यहाँ समझिएगा, ये जो ऊपर पिलर लगा है, ये 20 साल पहले नहीं था। बात समझ रहे हैं जी। ये बाद में निशानी के तौर पे है। इसके ऊपर वो अपने बोर्ड लगाते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसको अब निशानी ले लें कि ये है वो पहाड़ जहाँ जबले रहमत जो है, ये वाला पहाड़ है। निशानी बन गई इसकी वाइट वाला पिलर जी। अच्छा, इसी के करीब कोई जगह अल्लाह बेहतर जानता है, इसी के करीब ही प्यारे आका ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया। बताया जाता है मुख्तलिफ जगह कहा जाता है, वो आगे पत्थर के पास या वो पुरानी जगह है ना जो, उसके बारे में कहा जाता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। तो अल्लाह बेहतर जानता है। इसी के करीब प्यारे आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, इसी के करीब अपनी ऊँटनी किस्बा पर बैठकर तवील दुआ फरमाई, और इसी के करीब या इसी के इर्द गिर्द हमारे अब्बा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मी जान हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जब जन्नत से दुनिया पर तशरीफ लाए ना, उसके 300 साल के भी बाद अल्लाह के हुक्म से जहाँ पहली मुलाकात हुई, आज उसके पास खड़े। दिल हाजिर है जी। और यही वो जगह है जिसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया, हाजी गुनाह लेके आता है, जब यहाँ से जाता है ऐसे होता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। तो जो रब हाजियों की मगफिरत फरमाता है, हमारा भी वही रब है। अब यहाँ एक और चीज समझने वाली है, अभी तो फवाद भी पड़ रही है, मजा भी आ रहा है। तो एक चीज समझिए, ये मक्के की गर्मी है जी। ये किस्मत वालों को नसीब होती है। आपको समझना चाहिए कि अगर यहाँ ठंड होती, लोग क्या करते, गर्मियों की छुट्टियां चले उधर गुजार आते, जी जी। ये होता। लेकिन जो भी आता है अल्लाह की रिजा के लिए आता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो, जाना तो बस जाना। क्यों? यहाँ आका के कदम लगे हैं, यहाँ अल्लाह की निशानियां हैं। तो इंशाअल्लाह बार बार अल्लाह आना नसीब फरमाए और इस गर्मी को ऐसी ताकत दे के बर्दाश्त करना भी नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चले, यहाँ हमारा असल मकसद मैंने क्या अर्ज किया था, अपने रब को राजी करना। क्या नियत लेके घर से निकले थे ये आपको पता है। पहले खुद दुआ मांगे, दिल को ठंडा करे, फिर मिलके करते हैं। जो दिल में है पहले खुद मांगे, जी। दुआ कर लें। बिल्कुल करीब आ जाएगी, अपने दाई तरफ सीधे आ। ये देखिए आ गई है, ये करीब आई जा रही है जी। ये है नहर जुबैदा। ये साइड से दीवार है, ऊपर से चौड़ी है। अच्छा ऊपर से पत्थरों से, जैसे स्लेट से रखी होती है ना, जी तो ऊपर से ऐसे है। ये देखिए पत्थरों से बनी है, ये छोटे छोटे पत्थर। जी। ये देखिए, ये जाती जाएगी आगे। अच्छा, देख रहे हैं कितने छोटे पत्थर हैं, कितने मजदूर लगे होंगे, जी। कितना खर्च हुआ होगा। इसका तज़किरा कुरान पाक में है, जी। मशअरिल हराम। जब अराफात से लौटो, मशअरिल हराम को जिक्रुल्लाह की जगह बनाओ। माशाल्लाह, जब अराफात से लौटो, मशअरिल हराम को जिक्रुल्लाह की जगह बनाओ। बाद में मस्जिद बनी, जगह का नाम है मशअरिल हराम। देखिए अपने दाईं तरफ, ये मीनार आने लगे हैं।
تو ذکر دو کرنا مینار والی مسجد مسجد مشعر الحرام آ رہی آپ کے دائیں طرف آ گئی. یہ دیکھیے آگے یہ والی وہ یہ اب دیکھیے مشعر الحرام مزدلفہ دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ دیکھ رہے ہیں. دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. جی اچھا ساتھ اللہ ایسا دل دے دیکھتے جائیں اور یاد آتا جائے یہاں پیارے آقا نے نماز عطا فرمائی, صحابہ نے نماز عطا فرمائی, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ. تو یہ ہے مسجد مشعر الحرام جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں, جب عرفات سے لوٹو مشعر الحرام کو ذکر اللہ کی جگہ بناؤ. اسی لیے پیارے آقا نے یہاں نمازیں بھی ادا فرمائی, صحابہ نے بھی نمازیں ادا فرمائی, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اچھا آپ بتاؤ کہاں سے کنکر اٹھائے جاتے ہیں؟ پڑھے. اچھا اب یہاں سمجھیے, مزدلفہ سے کنکر اٹھانا سنت ہے. مزدلفہ ہے نا, یہاں سے کنکر اٹھانا سنت ہے شیطان کو مارنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں سورہ فیل میں جس کا تذکرہ ہے, اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا, ابابیل آئے, انہوں نے کنکر برسائے, ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. تو وہ جگہ آنے والی ہے. اچھا یہاں سمجھیے, جہاں مزدلفہ ختم ہوگا وادی محصر شروع ہو جائے گی, جہاں وادی محصر ختم ہوگی مینا شروع ہو جائے گا. لیکن کیا ہوگا, ان دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے نا وہ سیدھے جگہ آئے گی, یہ پل کے نیچے جہاں پل ختم ہونے لگا ہے یہاں آئے گی وادی محصر. نظر نیچی کریں گے استغفر اللہ پڑھیں گے, دیکھیں وہ وائٹ ہے چھوٹا سا پلر. جی دیکھیے. ایک منٹ میں رکوا ہوں, گاڑیوں میں نا رش ہے نا. دیکھو اب یہاں سے دیکھ لیں فوراً, آپ بیٹھ جائیے. وہ دیکھیں ادھر دکھ رہا, پہاڑ پہ چھوٹا سا, ادھر دکھ رہا. ہاں وہ دیکھیں چھوٹا سا, جا کے ہاتھ بتلاؤں. وہ پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا ہے نا وہ پلر, وہ چھوٹا سا پلر یہ نا جی, یہ نا جی. پہاڑ پہ دیکھیے. نے طبرانی شریف میں نقل فرمایا یہاں 70 انبیاء کے مزارات ہیں. کتنے؟ جہاں اللہ کا ایک نے ایک بندہ اور رحمت برسے تو جہاں 70 انبیاء رحمتوں کی بارش ہوگی نا. چلیں اب سامنے دیکھیں, وہ آپ کو مینار نظر آئے گا. دیکھیں سامنے مینار نظر آیا, آپ کے لیفٹ میں دیکھیں 4 مینار والی مسجد آنے لگی ہے. ٹھیک ہے, اپنے الٹا تک سلام کرنا ہے انبیاء کو. یہاں سے دیکھیے یہاں آ گیا السلام علیکم انبیاء کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ انبیاء کا صدقہ ہماری مغفرت فرما, یا اللہ انبیاء کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا, ہمارے بچوں کی خیر فرما, ہمارے عزیزوں کی خیر. نیچے 3 شیطان ہیں. کہاں 3؟ وہ سامنے یہ جمرات. وہ سامنے. تو آ تو دیکھا تو بنے چلو. اچھا دائیں طرف بھی دیکھیں مینا کے خیمے, ماشاء اللہ. مینا کے سیدھے ہاتھ ہے مینا کے خیمے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ادھر سے پورا دکھ رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ جمرات جہاں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں, یہ مینا کے خیمے دیکھیں. جی عزت والے حاجیوں کا شہر مینا. اللہ ہمیں بھی ان خیموں میں سے خیمہ عطا فرمائے. اور غزوہ حنین کے شہداء کے مزارات بھی بنائے, کچھ صحابہ وہاں مدفون ہیں. دوسرا وہاں سے پیارے آقا نے صحابہ میں مال غنیمت تقسیم فرمایا. مال غنیمت سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. عالم تو سمجھتے ہیں, چلے میں عام لفظوں میں, جو جنگ کے اندر مال ہاتھ آتا ہے وہ صحابہ میں تقسیم فرمایا پیارے آقا نے. اچھا اور وہیں پر پھر پیارے آقا نے احرام باندھ کے عمرہ ادا فرمایا. اس لیے وہاں سے عمرہ کرنا سنت بھی ہے, اور وہاں اس لیے اس کو بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں. اچھا وہاں ہی پیارے آقا نے عصا مبارک زمین میں گاڑا تو چشمہ بھی نکلا تھا. تو یہ ساری جگہ وہی ہے. اچھا ایک عورت تھی جس کا لقب تھا جیرانہ, اس کا عورت کا لقب تھا جورانہ بھی جیرانہ جو آپ کہہ لیں.
उसकी जमीन थी। जहां मस्जिद तामीर हुई उसको बाद में मस्जिद जोराना कहा या मस्जिद जेराना। तो यही है जबले नूर जिसके ऊपर है गारे हीरा। अभी सामने से भी नजर आएगा, पहाड़ पे मैं रुकवाता हूँ इसको आगे ना, वो पुल पे रोकेगा तो आपको समझ आ जाएगा। वही देखिए ना, शुक्र। तो अभी देखना शुरू करें दाईं तरफ, ये है। अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, अब ये पीछे से रास्ता जाता है, वो पहले जो रास्ता जाता था वो नीचे एक मस्जिद आएगी छोटी सी, मैं दिखाऊंगा, वहां से ऊपर चढ़ते थे। अब वो पीछे वाला रास्ता भी ओपन है, पीछे से भी जा सकते हैं। ये जो नजर आ रहा है ना सीमेंट वाला, वो बना हुआ वो रास्ता। अब वहां कल गए थे, अब पीछे से। अच्छा वो नीचे देखिए, वो नीचे मस्जिद का मीनार नजर आया, छोटी मस्जिद, वो देखिए नीचे, उसके करीब गाड़ियां रुकती थी, वहां से फिर पैदल चढ़ना होता था। वो देखिए अब बंद हो गया वो ज्यादातर नहीं जाने देते, वो गिरने का होता था। वो पीछे से रास्ता है। ये क्या है? जबले नूर जिसके ऊपर है गारे हीरा। वो था गारे सोर, जबले सोर। ये है जबले नूर, गारे हीरा। रिकॉर्ड कर लें या लिख लें ताकि सारी जिंदगी याद रहे। जज़ाकल्लाह। ये देख लें मकबरा क्या है? अदल। इंशाअल्लाह आगे जो आएगा वो है जन्नतुल माइला। आगे तो इंशाअल्लाह आ गया। इसके बाद 1 मिनट बिछी हुई है ना ये कालीन, यही है मस्जिद, मस्जिद जिन, ये वाली। जिन ही बनाए मस्जिद, मस्जिद जिन नहीं बनाए कौन? जिन बनाए जगह जो होती है ना, उस जगह के नाम पे यहाँ मस्जिदें हैं। आज हम इंशाअल्लाह उस मस्जिद की भी ज़ियारत करेंगे जहां पर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत अब्बास से हुई, और उन्होंने और आपके बहुत प्यारे सहाबी रसूल भी थे। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ ताइफ शहर के अंदर आए तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की भी आपके साथ मुलाकात हुई, और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताइफ शहर के अंदर जब आए तो कम पेश 10 दिन तक यहाँ रहे। इसका नाम है मस्जिद अली। नजर आ रही है वाइट कलर वाली जी। ये सीधे हाथ पे ये है मस्जिद अब्बास जी। वहाँ ठहरेंगे आप लोग, फोटो वगैरह ले लें। जी जी सीधे हाथ पे देख लें। ये जो उल्टी साइड वाले सीट वाले हैं उठकर देख लें, फोटो वगैरह बनाना है तो बना लें। ये है मस्जिद अब्बास। जी जी बिल्कुल, ये है मस्जिद अब्बास जी। यहाँ पर जो बगीचा था उतबा और शेबा का, जो मुनाफिक थे, काफिर थे, उनका था, और जो हजरत अब्बास थे इस बगीचा के अंदर काम करते थे और नैनवा के इलाका के रहने वाले थे। और यहीं पर ही आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मुलाकात हुई और हजरत अब्बास ने आपके साथ सवाल जवाब किए, फल पेश किए। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फल खाने लगे
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो हजरत अब्बास कहने लगे कि यहाँ तो रहमान और रहीम को कोई मानने वाला नहीं, तो आप ये क्या पढ़ रहे हैं? नहीं करेंगे नहीं, ये आगे, ये आगे मस्जिद है, ये जंगला लगा हुआ, हुजाज इकराम अंदर देख रहे हैं, और इस सहन के अंदर ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये अंदर इस पत्थर के साथ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगा कर बैठे थे। जी जी, इसके अंदर सहन के अंदर ले लेके चलो। ये वाला जिसके नीचे दो छोटे पत्थर है, ये वाला सीधे आपको देखेंगे ऊपर, ये है हिजरे मुअल्लक, ये नीचे की तरफ लपका हुआ है। ये बड़ा पत्थर तो पत्थर रखे हुए, जिसके नीचे जो छोटे दो पत्थर है, अच्छा ये वाला बड़ा 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 जी, ये है हिजरे मुअल्लक। वो पत्थर हो रहा है बड़ा जी 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 जी, बिल्कुल सही पहचान है, यही है। ऊपर से लोग जो ढकर रहे जी जी जी, वो नीचे फेंकना चाह रहे थे, आप सरकार यहाँ मौजूद थे ताकि नौजुबिल्ला आपको नुकसान पहुंचा सके, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर इस पत्थर की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर तू अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, अगर किसी शरारती की शरारत है तो यहीं पर रुक जा। नहीं ऊपर, ये बिल्कुल सामने है, देख सकते हैं, फोटो बना लें। नीचे वाला ना सब ऊपर वाला यार, यह भी सामने नजर आ रहा है, जिसके नीचे दो छोटे पत्थर। दो छोटे पत्थर दिखा पूरा दिख रहा पत्थर को, ये ना कौन सा देख लिया सबने? देख लिया। तो एक बार पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तीसरी बार फिर पूछती हैं हजरत अम्मा हाजरा कि हमें आप यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब खामोश हो जाते हैं तो हजरत अम्मा हाजरा समझ जाती हैं, क्योंकि वो भी शान वाली औरत थी, एक नबी की माँ है, दूसरे नबी की बीवी है, क्या शान है, सुभान अल्लाह। तो हजरत अम्मा हाजरा कहती हैं कि आप अगर बोल नहीं रहे तो उसका मतलब है अल्लाह की तरफ से आपको ऑर्डर आया है, हुक्म आया है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बिल्कुल अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आपको यहाँ छोड़कर जाना है। तो आप यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हाजरा को छोड़कर फलस्तीन की तरफ चले गए, और जब कुछ दिन गुजरे, कुछ जो मालो असबाब था, खाने पीने के असबाब थे, वो ख़त्म होते चले गए, और कुछ ही दिनों के बाद देखते हैं कि कुछ खाया पिया नहीं और बच्चे के लिए दूध पिलाना भी मयसर नहीं। तो हजरत अम्मा हाजरा जो है अपने बेटे को मताफ के अंदर लिटाती हैं, जो मताफ अभी आप देख रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है जो आप हुजाज कराम अक्सर करते हैं कि हाजी कारी साहब ये कुआं कहाँ है जमजम का? तो हुजाज कराम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ड्यूटी हरम में है, तो इसलिए हमने देखा भी है और पता भी है। तो कुआं नहीं है, चश्मा है। जैसे हुजाज कराम बोलते हैं कि कुआं कहाँ है, कुआं नहीं है, चश्मा। ये है मीकात कर्नुल मनाजिल, और इस जगह का नाम सैल कबीर है। यहाँ पर हम इंशाअल्लाह रुकेंगे, आपको वाशरूम वगैरह दिखाएंगे, और आप लोग जो है एहराम बांधने के बाद मस्जिद के अंदर जाएंगे, तहियतुल उम्रा ये अदा करके आप लोग अपनी गाड़ी में वापस आ जाएंगे। और जैसे ही गाड़ी में वापस आएंगे तो हम इंशाअल्लाह वापसी मक्का की तरफ रवाना हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, आपके पास 40 मिनट टाइम होगा। अभी 12:46 हो चुके हैं, तो आप लोग जो है 40 मिनट के अंदर अंदर एहराम बांध के वजू करके वापस आ जाएंगे। ये गाड़ियां जो है हम इंशाअल्लाह साथ नेड़े लगा रहे हैं, नजदीक लगा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये गाड़ी जहां अभी हम खड़ी करेंगे वही रहेगी, ठीक है। तो ये सामने एक ही इस मस्जिद का मीनार है, और इसी के मुत्तसिल ही पहले लेडीज के दरवाजा है नमाज पढ़ने का, और परली साइड से मेन दरवाजा है जेंट्स का नमाज पढ़ने का।
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك